In today's session, we will see how to design a helical spring when the given load and deflection is provided to you. मीन्स आज के सेशन में हम हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के डिजाइन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जब हमारे पास लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, स्प्रिंग इंडेक्स प्रोवाइडेड है, तो उस केस में हम स्प्रिंग का डिजाइन कैसे करते हैं. ओके, अगर हम बोलते हैं क्या कि हम स्प्रिंग का डिजाइन करने जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्मॉल डायमीटर डी. स्मॉल डायमीटर डी क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि हमारा जो स्प्रिंग है, जिस वायर से बना हुआ है, उसका डायमीटर क्या है. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर कैपिटल डी. कैपिटल डी डिनोट करता है क्या? मीन कॉइल डायमीटर. मीन्स जब आप हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को बना लेंगे, उस समय जो इसका मीन कॉइल डायमीटर आएगा, दैट इज आवर कैपिटल डी. Then next you have to find out the free length of the spring. Spring का free length कितना है? Then you have to find out the number of active turns in the spring, number of total turns in the spring. Okay, then pitch of the spring कितना आ रहा है? तो ये सारे डायमेंशन को अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं, देन हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोगों ने स्प्रिंग का डिजाइन कर दिया. ठीक है. इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर आपसे बोला जाए कि यू हैव टू डिजाइन ए स्प्रिंग, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन. व्हाट आर द डायमेंशंस रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए स्प्रिंग? मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल डी, which is the wire diameter of the spring. Means the spring made up of that wire, then the diameter of that wire. Then second one is capital D. Capital D denotes the mean coil diameter of the spring. Then you have to find out the number of active turns in the spring, total number of turns in the spring. Then you have to find out the free length of the spring, and also you have to find out the pitch of the spring. Means if you find out all these dimensions, means you can say that for this much amount of load, you have to, if your dimension of the spring is this, then your spring will not fail. क्लियर. मतलब डिजाइन करने का मतलब हो गया कि आपको डायमीटर डी निकालना है, स्मॉल डायमीटर डी निकालना है, कैपिटल डायमीटर डी निकालना है, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालना है, और पिच ऑफ द स्प्रिंग को कैलकुलेट करना. अगर आप इतनी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, देन यू आर एबल टू डिजाइन ए स्प्रिंग. देन यू से दैट आई हैव डिजाइन द स्प्रिंग. Okay, so let's solve one or two problems based on the design of the spring. ठीक है. तो today's our first problem is design a helical compression spring. The first problem is design a helical compression spring for a maximum load of 1000 Newton for a deflection of 25 mm using the spring index as 5. The maximum permissible shear stress for a spring wire is 420 megapascal, and modulus of rigidity. Modulus of rigidity means G value is given to us as 84 kilonewton per mm square. Also, here it is considered that take Wahl's factor, which is denoted by K, or in some book it is denoted by KW, is equal to 4C minus 1 divided by 4C minus 4 plus 0.615 divided by C. This is the Wahl's factor. So you have to consider this Wahl's factor also in your calculation for the designing of the spring. Okay, let's calculate this, or I will give some brief idea about the stresses in the spring. We all know that the net stress acting, resultant stress acting on the spring wire is nothing but is equal to Kw or K, that is a Wahl's factor multiplied by 8Wc upon pi dq. That is the net value of the resultant stress in the spring wire. Okay, means in a spring wire the stresses are for the turning moment or twisting moment, then the shear stress, then the direct shear stress, and also the stress value due to the curvature effect. Means you have to consider the curvature effect, and if you consider all these effects, then one factor comes into the picture, that is known as Wahl's factor, and whose magnitude or expression is this one. This one is the expression for the Wahl's factor. Means if you see, this is the total stress value by considering the
Walls factor. This one is the Walls factor and this one is the stress value AWC plus divided by pi d square. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is equal to 8WD upon pi dq, where C is known as the spring index. Spring index means it is equal to the or ratio of the capital D upon small d, means mean coil diameter divided by diameter of the स्प्रिंग वायर. ये इन दोनों का रेशियो होता है और बेसिकली जो सी होता है वो डिफाइन करता है रिलेटिव शार्पनेस ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग वायर का रिलेटिव शार्पनेस कितना है उस चीज को ये डिनोट करता है. ठीक है, उस चीज इसका मतलब प्रैक्टिकल जो अगर सिग्निफिकेंस बोला जाए तो ये हमारे लिए है, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव शार्पनेस ऑफ द स्प्रिंग. क्लियर? ओके, देन let's solve this problem. In this problem, the given data are, we have to provided a maximum load W is equal to 1000 Newton for a deflection of 25 mm, means deflection is given to 25 mm, means maximum load के correspondingly deflection हमें provided है. Spring index दिया हुआ है हमारे पास 5, that is the ratio of mean coil diameter to small diameter is 5, and spring जिस वायर से मिलकर बना हुआ है उसके लिए जो permissible shear stress value है that is equal to 420 megapascal. ठीक है, मतलब हमारा स्प्रिंग जिस वायर से मिलकर बना हुआ है या जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका स्ट्रेंथ हमारे पास शियर केस में दिया हुआ है 420 मेगापास्कल. ऑल्सो इट इज प्रोवाइडेड दैट मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी इज 84 किलोन्यूटन per mm square. Okay, then let's calculate the dimension or design the spring. The first step is you have to find out the mean diameter of the spring wire, means capital D कितना आएगा उसको कैलकुलेट करना है. You can easily calculate. First, calculate the value of the Wahl's stress factor. Wahl's stress factor कितना होता है? 4C minus 1 divided by 4C minus 4 plus 0.615 divided by C, and it considered the effect of the direct stress, twisting moment, and कर्वेचर इफेक्ट. ये सबको कंसिडर करके हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं वाल्स फैक्टर, मतलब कर्वेचर इफेक्ट को इंक्लूडेड रहता है इन दिस वाल फैक्टर. जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ C here, you will find the K value is 1.31. Also, we know that the shear stress or maximum shear stress in the spring wire is equal to K multiplied by 8WC upon pi d square. ठीक है, अगर हम इसके वैल्यूज को यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे, टी इज गिवन, टाउ इज गिवन टू अस, टाउ हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 420 मेगापास्कल. हमें सबसे पहले क्या निकालना है? स्मॉल डी. अगर स्मॉल डी निकल जाएगा तो हम कैपिटल डी निकाल सकते हैं. कैपिटल डी कैसे निकलेगा? कैपिटल डी निकलेगा हमारे पास C इंटू स्मॉल डी, C मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी. वाई क्योंकि C का जो है वो हमारे पास इन दोनों का रेशियो है, रेशियो ऑफ द मीन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाई स्प्रिंग वायर जिससे मिल के बना होता है उसके डायमीटर के बराबर होता है. तो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ K 8W C अपॉन पाई डी स्क्वायर. डी इज अननोन हियर. जस्ट पुट द वैल्यूज. जब हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हम देखते हैं क्या कि डी का वैल्यू जो आता है वो हमारे पास आता है 6.3 mm, मीन्स स्मॉल डी का जो वैल्यू आता है वो हमारे पास आता है 6.3 mm. ओके, देखिए उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि फ्रॉम टेबल दिस 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 वी शैल टेक ए स्टैंडर्ड वायर ऑफ साइज इतना हैविंग डायमीटर डी इज इक्वल टू इतना. अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या करना है कि अगर हमारे पास डायमीटर आता है तो आप डिजाइन डाटा बुक में जाएंगे. वैसे भी डिजाइन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिजाइन डाटा बुक को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, हम डिजाइन डाटा बुक में गए, स्प्रिंग वाले चैप्टर में गए, हम वहां पर वायर का स्टैंडर्ड वायर साइज को देख रहे हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गॉस डायमीटर है उसको देख रहे हैं. हम देख रहे हैं क्या कि 6.3 का अवेलेबल नहीं है. जो डायमीटर दिया हुआ है SWG3 का वो डायमीटर है 6.401 अकॉर्डिंग टू द डिजाइन डाटा बुक. मतलब आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक द स्टैंडर्ड वायर ऑफ साइज 3 हैविंग डायमीटर इतना. मींस अब आप अपने पर्पस के लिए जो यूज करेंगे वो हमारे पास डायमीटर जो आया वो हमारे पास इतना आया 6.401. मीन्स दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू. मतलब इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं. आपको जब भी लेना पड़ेगा तो या तो जो डिजाइन डाटा बुक में अवेलेबल है या इससे हाईएस्ट साइज का लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 6.401 mm इज द स्टैंडर्ड वायर ऑफ साइज जो हम आप लोग यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए. क्लियर? तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डी आ गया,
वायर डायमीटर आ गया, तो हम यहाँ पर मीन डायमीटर ऑफ वायर स्प्रिंग कॉइल निकाल सकते हैं। मीन डायमीटर कैसे निकलेगा? मीन डायमीटर D इज इक्वल टू C इंटू डी। मीन डायमीटर तो इसी तरीके से निकलता है, हमारे पास C वैल्यू मालूम है, यहाँ हमने D के वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, तो जस्ट पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो हमारे पास मीन कॉइल डायमीटर इतना आ गया। अगर इसका आउटर डायमीटर निकालते हैं तो मीन कॉइल डायमीटर प्लस स्मॉल d वायर डायमीटर को ऐड करेंगे। इनर डायमीटर निकालना है तो इनर डायमीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? d इनर इज इक्वल टू, अगर हमको d इनर निकालना है तो हम यूज करेंगे d माइनस स्मॉल d। ठीक है, तो ये डायमेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट हो गया? हमारे पास कैलकुलेट हो गया स्मॉल d, कैपिटल D, d आउटर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप is to calculate the number of turns of the coil, number of turns of the coil। ठीक है, let's suppose अगर हम लेते हैं क्या n जो है हमारे पास, जो स्मॉल n है, that is the active number of coils, active number of coils in the spring। तो हमें पता है कि डिफ्लेक्शन के एक्सप्रेशन में n आता है। Let's just use it, we know that deflection is equal to 8wcq n upon g into d। ये एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डिराइव कर चुके हैं कि हमारे पास जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होता है उसका एक्सप्रेशन समथिंग इतना होता है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखिए, ओनली अननोन थिंग इज आवर एन, ये जो है यही हमारे पास अननोन है। एन क्या है? दैट इज द एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ अदर पैरामीटर W, C, G एंड D। जब इस वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यूज आती है 13.44। 13.44 मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स आता है, अगर इसका नंबर लेते हैं तो इट इज इक्वल टू द 14। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स इसमें हम लोग 14 आता है, लेकिन नंबर ऑफ इनएक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव कॉइल्स भी होते हैं, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द लोड शेयरिंग, और लोड शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर सपोज करो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम स्क्वायर एंड ग्राउंड एंडेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन हम लोग देख चुके हैं स्प्रिंग में। तो अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? जो हमारे पास एक्टिव टर्न्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं? दो ऐड करते हैं। तो दिस वन इज आवर टोटल नंबर ऑफ turns, this one is our total number of turn for the spring। ठीक है, तो यहां हम लोग ने क्या निकाल दिया? सबसे पहले हम लोग गए तो कैलकुलेट किए टोटल नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स कितना आया। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ने यूज किया फॉर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो आएगा वो ऐड हो जाएगा दिस वन एंड इट कम्स टू दिस वन। क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का फ्री लेंथ कितना आएगा? ठीक है, फ्री लेंथ के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो हमारे लिए समथिंग इतना आता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस डेल्टा मैक्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है, और गैप को कंसिडर करते हैं हम लोग 15% ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर इतना लेके चलते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.15 इंटू डेल्टा मैक्स। 15% ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कंसिडर करते हैं। इन इफ इन क्वेश्चन अगर आपसे ये बोला जाए कि हमारे पास जो गैप है वो 1 और 2 mm का है, तो सिंपली हमको उस चीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो आप यूज कर सकते हैं 15% ऑफ द डेल्टा मैक्स। तो इसके वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आएगा वो हमारे पास 131.2 mm आ रहा। जैसे ही फ्री लेंथ मिल गया तो हम उसके पिच को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय n डैश माइनस 1। फ्री लेंथ हमें मिल चुका है तो हम पिच को निकाल सकते हैं, मतलब एक स्प्रिंग से सेम उसी पॉइंट पर आएंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए पिच कहलाता है। ठीक है, तो अगर इतना चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है कि वी हैव डिजाइन द स्प्रिंग मींस फॉर सस्टेनिंग 1000 न्यूटन लोड, और वो अगर डिफ्लेक्शन 25 mm प्रोड्यूस कर रहा है, स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें जो स्प्रिंग वायर यूज करना है उसका डायमीटर आ जाएगा 6.401 mm। जो मेन कॉइल डायमीटर आएगा उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 32.005 mm। जो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 14। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 16। फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग शुड बी दिस वन एंड पिच ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू दिस वन। अगर इतने डायमेंशन को आप कैलकुलेट कर देते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि हमने स्प्रिंग का डिजाइन कर दिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 2। सेम प्रोसीजर we will use. Okay, let's
see this. The question is design a close coil helical spring. ठीक है, आपको एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को डिजाइन करना है. क्लोज कॉइल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर ए सर्विस लोड रेंजिंग फ्रॉम 2250 2250 न्यूटन से 2750 न्यूटन तक है. द एक्सल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फॉर दिस लोड रेंज, इस लोड रेंज में एक्सल डिफ्लेक्शन हो रहा है 6 mm का. एज्यूम ए स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ 5. द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज दिस वन 420 मेगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज दिस वन. नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. ठीक है, इसको हम लोग को नहीं कंसिडर करना है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नहीं कंसिडर करना है. ठीक है, तो हम लोग सिंपल यूज करेंगे, मतलब वॉल स्ट्रेस फैक्टर को कुछ भी चीज को यूज नहीं करना है. ठीक है, इन्होंने अगर मेंशन कर दिया, मेंशन नहीं करता तो हम लोग यूज करते केडब्ल्यू के एक्सप्रेशन को भी. लेकिन जब मेंशन कर दिया गया है तो वी विल नॉट यूज दैट फैक्टर. ठीक है, उस फैक्टर को हम लोग यूज नहीं करेंगे. ओके, तो हमें क्या करना है कि एक क्लोज कॉइल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को डिजाइन करना है जिसके लिए सर्विस लोड रेंज करता है 2250 न्यूटन से लेकर 2750 न्यूटन तक. एक्सल डिफ्लेक्शन स्प्रिंग फॉर द लोड रेंज के लिए 6 mm प्रोवाइडेड है. स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है. परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी दी हुई है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्रोवाइडेड है. तो हमको इस चीज का डिजाइन करना है कि ये कितना होगा. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व इट. सर गिवन है W1 2250 न्यूटन, W2 लोड रेंज दिया हुआ है, मतलब ये हमें प्रोवाइड किया गया है. दिस इज द मैक्सिमम लोड. ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंग के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लोड वैल्यू आ जाएगा. डेल्टा इज गिवन टू अस. स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू प्रोवाइडेड है, जी दिया हुआ है. तो हम लोग जस्ट सॉल्व करते हैं. फिर स्प्रिंग डिजाइन कर रहे हैं, मतलब हमें कैलकुलेट करना है सेम एज स्मॉल डी, कैपिटल डी, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, फ्री लेंथ कितना होगा, एंड लास्ट वन इज पिच ऑफ द स्प्रिंग कॉइल की कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट इस. सपोज कीजिए अगर कैपिटल डी हम मानते हैं क्या कि ये हमारे पास क्या है, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल फॉर ए मैक्सिमम लोड. जब भी डिजाइन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, मैक्सिमम लोड के लिए. ये जो लोड रेंज है 2250 से 2750, वहां पर मैक्सिमम लोड की वैल्यू कितनी है, 2750 न्यूटन. तो हम यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन स्प्रिंग में निकाल सकते हैं. जो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है W2 इंटू D/2. इतना ही हम लोग यूज करेंगे. अगर मेन कॉइल डायमीटर दिया हुआ है उसका आधा कर देंगे तो इतना ही यूज होगा. ठीक है, हमें क्वेश्चन में C दिया हुआ है, तो C की वैल्यू है D अपॉन स्मॉल d. इसकी वैल्यू है हमारे लिए 5. तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कैपिटल D कितना होगा, 5 इंटू डी, 5D/2 यहाँ पर रखे. तो हमारे पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है उसका एक्सप्रेशन आ रहा है 6875D. ये हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट आया. और ये टॉर्क किसके बराबर होगा, ये जो टॉर्क होगा वो इक्वल होगा π/16 टाउ dq, इसी के बराबर होगा ना. ठीक है, आप देखते आए हैं T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल. उस एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा वो इक्वल होगा π/16 इंटू टाउ इंटू dq के. ठीक है, सेम एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर रखा. ठीक है, उसके वैल्यूज को जब हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 5/16 टाउ dq के वैल्यूज को यहाँ पर जब हम रखते हैं तब हमारे पास डायमीटर जो आता है वो आता है 9.13 mm. ठीक है, दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर. ठीक है, स्प्रिंग जिस वायर से मिलकर बना है उसका डायमीटर है 9.13 mm. अगेन सेम प्रोसीजर यूज करेंगे. सेम प्रोसीजर क्या बोलता है, डिजाइन डाटा बुक में देखेंगे, वहां पर देखेंगे स्टैंडर्ड वायर साइज कितना है, 9.13 mm से ज्यादा वाला जो वायर साइज अवेलेबल है उसी को हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इन्होंने लिखा जैसे कि फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक हमारे पास जो डायमीटर है वो अवेलेबल है 9.49 mm का, मतलब जो डी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9.49 mm. ठीक है, स्मॉल डी we have calculated here. Okay, the next is the mean diameter of a spring coil. mean diameter कैसे निकलेगा, C is equal to D/D. ये तो प्रोवाइडेड है स्प्रिंग इंडेक्स. अगर स्प्रिंग इंडेक्स प्रोवाइडेड है तो हम इस D को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, C मल्टीप्लाइड बाई D. यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मेन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल आ गया. जब मेन डायमीटर आ गया तो हम इसके आउटर डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके इनर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल को कैलकुलेट कर सकते हैं.
ठीक है, दोनों चीज को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप था टू कैलकुलेट द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स कितना आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, इस एक्सेल डिफ्लेक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस लोड रेंज का एक्सेल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, मतलब 2250 में एक्सेल डिफ्लेक्शन कुछ भी हो, लेकिन ये बता रहा है क्या कि इस रेंज में एक्सेल डिफ्लेक्शन है आपके पास समथिंग 6 mm का। ये कितने mm के लिए है? मतलब लोड की वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन है, तब तो डिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे पास 6 mm का। समझ में आया? ये बताना चाह रहा है क्या कि जो एक्सेल डिफ्लेक्शन है फॉर द लोड रेंज ऑफ 2250 न्यूटन से 2750 न्यूटन, मतलब जब लोड की वैल्यू 500 न्यूटन हम लोग यूज करते हैं तब हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 6 mm। तो फिर अगेन सेम प्रोसीजर, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्शन, जस्ट पुट द डिफरेंट पैरामीटर्स वैल्यू इन द डिफ्लेक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने पुट किया कि डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग डेल्टा इज इक्वल टू 8W CQ n अपॉन डिवाइडेड बाय G into D। जस्ट इस एक्सप्रेशन में इसके वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो n का वैल्यू आ रहा है और 9.5 मतलब 10। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स जो होंगे वो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 10। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव टर्न की संख्या हो गई हमारे पास 10। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगे वो आ जाएंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को ऐड किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए अगर हम स्क्वायर एंड ग्राउंड एंडेड का यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स प्लस 2 वैल्यूज को यूज करते हैं। मीन्स ये इनएक्टिव कॉइल होते हैं जो कि ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट नहीं लेते हैं लोड को बियर करने में। ठीक है, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गया तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्री लेंथ। फ्री लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? ओके, अब देखिए, जब 500 न्यूटन है तो उस समय डिफ्लेक्शन हो रहा है, लोड की वैल्यू अगर 500 न्यूटन है तो डिफ्लेक्शन है 6 mm का, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 2750 न्यूटन में कितना आएगा? समझ में आया? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें था कि लोड रेंज 2250 से 2750 में आप जा रहे हैं, तब डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 6 mm। मतलब 500 न्यूटन का जब लोड है तब हमारे पास डिफ्लेक्शन है कितना? 6 mm का। तो मैक्सिमम लोड के लिए हम लोग डेल्टा मैक्स निकालते हैं ना, तो डेल्टा मैक्स कैसे निकलेगा? डेल्टा मैक्स निकलेगा जस्ट फॉलो दिस कि अगर 500 न्यूटन का लोड था तो डिफ्लेक्शन था समथिंग 6 mm का, इसलिए अगर 1 होगा तो डिफ्लेक्शन होगा कितना? 6/500, इसलिए 2750 न्यूटन होगा, तो डिफ्लेक्शन जो डेल्टा मैक्स होगा वो हमारे पास कितना होगा? 33 mm का। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं टू इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, देन दिस कम्स n-d प्लस डेल्टा मैक्स प्लस 0.5 इंटू डेल्टा मैक्स, मतलब 15% है जो गैप है वो हमारे पास कितना है? 15% ऑफ द डेल्टा मैक्स का। 15% अगर डेल्टा मैक्स का कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास फ्री लेंथ जो है वो हमारे पास इतना है। एंड लास्ट वन इज द पिच ऑफ द कॉइल। कॉइल का पिच जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय n-1। फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय n-1। फ्री लेंथ यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर चुका है, n- की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, जस्ट पुट द वैल्यूज, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पिच एंड दिस वन इज द पिच। लेट्स शो इन द डायग्राम। डायग्राम में हम देखते हैं कि जो डायमेंशन कैलकुलेट किए वो हमारे पास कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए लेट्स सी, दिस वन इज द डायमीटर। ठीक है, जो हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर कितना है? यही है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। दिस वन इज द मीन कॉइल डायमीटर, ये हो गया इनर डायमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, दिस वन इज 13.8 जो शो कर रहा है, ये हमारे पास क्या है? पिच है। एंड दिस वन इज द फ्री लेंथ, ये हमारे पास फ्री लेंथ है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो टर्न आएंगे वो इतना आ जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी स्प्रिंग में अगर हमें लोडिंग वैल्यू दी हुई है और हमें बोला जाता है क्या
कि आपको एक स्प्रिंग का डिजाइन करना है, तो आप उसका डिजाइन कर सकते हैं। मीन्स स्मॉल डी, कैपिटल डी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, देन फ्री लेंथ एंड पिच ऑफ द कॉइल, इतने चीज को अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो मतलब आप बोलते हैं क्या कि आपने उसका डिजाइन कर दिया। और एक ही फंडा है कि आपको यूज करना, जो शियर स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू होती है के डब्ल्यू, या बुक में कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है के, जो कि वॉल्स फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय 8 WD अपॉन पाई डी क्यू, या 8 WC अपॉन पाई डी स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, उसके बाद कैपिटल डी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग इंडेक्स इक्वल टू डी बाई डी। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर, एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्प्रिंग बाय यूजिंग डेल्टा, मीन्स जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर स्क्वायर एंड ग्राउंड विंड, या जो भी इंड आप मानना चाहते हैं स्प्रिंग के लिए, उसको मान के हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, देन फ्री लेंथ, एंड देन लास्टली हम लोग पिच ऑफ द कॉइल को कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्प्रिंग डिजाइन प्रॉब्लम। क्लियर? ओके।